ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਨੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੌਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲ ਕੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਕੇ, ਔਕੜਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਅਖੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਜ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੌਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੌਲ, ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੌਲ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਕੋਈ ਔਕੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਲ ਭੁੱਲਦਾ, ਇਕਰਾਰ ਭੁੱਲਦਾ, ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਵੀ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ। ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨ ਤੇ ਬਚਾਈਏ। ਕੌਲ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਚਾਈਏ। ਆਪ ਜਿਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲੀਏ, ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕੌਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗਊ ਦੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੌਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੌਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੌਲ, ਇਕੱਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਰ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਜਰ ਗਏ, ਪਿਆਸ ਜਰ ਗਏ, ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਜਰ ਗਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੌਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੌਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੌਲ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਗਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰੋ, ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਿਆ, 7 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗਏ, 8 ਦਾ ਜਥਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਥੋੜੇ ਠਠੰਬਰ ਗਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਜਾ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ। ਪਰ
गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने हस के तोड़िया। ਸਿੰਘਾਂ ने मन च क्या भी ये तां ऐसा किवें हो गया। बाबा अजीत सिंह शहीद होए ते बाबा जुझार सिंह जी आग्ञा मंगदे ते सिखां नूं गुरु साहब सच्चे पातशाह जी के बाबत पता सी भी सतगुरां ने मना इन्हां नूं भी नहीं करना। पहले हाथ जोड़ के क्या दाता जी ना, पहला असां तुहानूं कुछ नहीं क्या। बाबा अजीत सिंह साडियां अखां सामने शहीद हो गए ने। दो छोटियां दा सानूं अजे पता नहीं, पर एक तां अपने पास रखो ना, एक तां अपने कोल लिखो। असीं जूझांगे, असीं मरांगे, असीं शहीद होवांगे। तुसीं चमकौर तो चले जाओ, नाल अपने इस फरजंद नूं बाबा जुझार सिंह नूं लै के चलो, तां जो पंथ नूं खालसे नूं लोड़ है। ते गुरु साहब सच्चे पातशाह ने कहा सी, गुरु के सिखो जे 1699 की विसाखी ते कौल तुसां कीता सी ना भी सिर देंगे, तुसां कौल कीता सी भी तुहाडे तो कदी भजांगे नहीं। दुख बन जाए, मुसीबत बन जाए, औकड़ बन जाए, असीं तुहाडे तो कदी नहीं भजांगे। ते मैं भी उदों तुहाडे नाल एक कौल कीता सी कि जे तुसीं गोबिंद लई सारा कुछ वारोगे ते समा आएगा गोबिंद भी तुहाडे लई सारा कुछ वारेगा। गोबिंद ने भी सारा कुछ वारना है। इस करके ये मैनू ना रोकिया जे कि मैं जुझार नूं ना जाण दियां, ये मेरे कोलों नहीं हो सकता। मैं तुहाडा हर हुक्म मन्नांगा, बस मैनू ये ना कहा जे किते लोग कल नूं आखण भी गोबिंद ने सिंह होर समझे ते पुत होर समझे। मैं ये कौल ही नहीं तुहाडे नाल कीता, मैं तुहाडे नाल ये कौल कीता सी कि मेरे लिए जे तुसीं आपा वारोगे ते मैं तुहाडे लिए अपना सब कुछ वार देंगा। सब कुछ वार के भी मैं तुहाडा कर्जा नहीं उतार सकता। मैं अर्ज कर रहा सां कि किसे लई जे कौल करके, किसे लई कोई वचन करके मरण तक चले जाना, वो कैसी शख्सियत होनी, उन्हां दा तेज, उन्हां दा प्रताप, वो अर्शी ने, उन्हां दा मुकाबला दुनिया का कोई रहबर नहीं कर सकता। मैं सिर्फ क्योंकि तुसी 2 दिन अगले शहीदां दे बाबत ही सरवण करना है, असी सारा साल सुनते हैं साहिबजादियां दी शहादत, वड्डियां दी शहादत, मैं भी अर्ज करा, पर केवल असी पहला ये वेख लईए भी ये शहादतां किसी के कौल ते एवें कोई मरन लई तैयार थोड़ा हो जाता है। कोई कहे भी मैं चलना, मेरे नाल मरन लई चलो, कौन चलता है? उहदे ताण, उहदे बचना च ताण चाहिए, उहदे बचना च जोर चाहिए, उहदे बचना च प्रभु दा प्यार ते प्रभु दी भगती चाहिए है। जिन्ना चिर जे बचना दे विच इखलास नहीं ते उस शख्सियत दे बचन कदी बंदे दे नाल बंदे नूं प्रेर नहीं सकते, बंदे नूं मोड़ नहीं सकते। उहदे बचन ही प्रेरणगे, मोड़नगे जिहदे बचना विच गुरु परमेश्वर आप वसदा। ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की रचना मैं अल्लाह यार खां जोगी दे शेर कहने तुहाडे नाल सिर्फ ये समझण समझाण खातर कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज की शख्सियत की सी, क्यों सिंह मर गए, उन्होंने शहीद हो गए, क्यों आपा वार दिता, परिवार वार दिता। एक नहीं भी एक एक सिंह वार गया, अपने परिवार वार दिता, अपना आपा वार दिता। तुसीं सरवण भाई साहब कह रहे सन कि चमकौर दे सिंह शहीदां दियां पावन लोथां नूं संभालण दे लई जिस बीबी ने जिम्मा चुक्या उहदा अपना सिर दा साई नहीं सी, पर की सी उहदे पास? गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे बचन, गुरु साहब सच्चे पातशाह जी दे कौल, गुरु साहब सच्चे पातशाह जी नाल कीता होया ने। अल्लाह यार खां जोगी दे बचन पढ़ो कदी, वो पहला लिखता है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी है कि उन्होंने बचन आते ने, करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है। पहला तो कहता भी जिन्ना मर्जी तुसी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सिफत कर लो ना, कदी मन च ये ना लिया भी मेरे वर्गा वड्डा भगत ही गुरु साहब का सिख ही कोई नहीं, क्योंकि इन्ना मैं उन्होंने जपिया, इन्ना उन्होंने नाल प्रेम पाया, इन्ना उन्होंने कीर्ति की है, मेरे जिन्नी कीर्ति कोई नहीं कर सकता। पर अल्लाह यार खां जोगी कहता है ये याद रखिया जे कि जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है।
कहते उन्होंने की कीती हुई सिफत सदा घट ही पाएगी, क्योंकि उन्होंने जिन्ना जो कर गए ने उन्होंने असी कथ ही नहीं सकते। उन्होंने वर्गा बनना तो बड़ी दूर की गल है, ना कथना है, अतकथनी है, पर उन्होंने जो कर दिता, जो कर विखाया, उन्होंने गायन करना, उनकी कीर्ति करनी भी बहुत वड्डी गल है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ क्या ताबे रकम है। कहता भावे कि मैं भी कवि हाँ, अल्लाह यार खान जोगी मुसलमान कवि सी। जिस वक्त उन्हें गुरु साहब जी की शहादतां बारे सुनिया सीना मसीना, छोटे साहिबजादे ते वड्डे साहिबजादियां की शहादत बारे सुनिया, जो कवि का हिरदा द्रव्या, उन्हें द्रवे हुए हिरदे नाल अपनी कलम चुकी ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के वड्डे साहिबजादे 40 सिंघां दे बाबत अपनी एक किताब ऐसे पीर रसी ते विराग में शेरां नाल भर दिती। ते जदों वो आप खुद गांदा सी, वो ऐसा कवि सी अल्लाह यार खां जोगी कि उन्हें कलियां किताबां नहीं लिखियां, उन्हें जो अपने शेर लिखे सन वो संगत विच इस तरह जिवें आपां संगत समागम करते हैं, अपने समय विच वो सिखां दी समागमां विच संगत दीयां स्टेजां विच गा के अपने शेर पेश करता सी ते इन्ना वजन विच गांदा सी कि आप भी रो पैंदा सी ते सुनन वाले भी रो पैंदे सी। इन्नी कमाल दी उहदी शायरी सी कि उन्हें अंदरों गुरु गोबिंद सिंह नाल प्रीति पाई। अंदरों जदों कोई अंदरों जुड़ता है ना, वो इन्ना नज़दीक हो जाता है कि उन्होंने क्यों प्रतीत होता है भी मैं उस वेले दा जिस वेले दा मेरा गुरु है, जिस वेले दा मेरा मुर्शद है, मैं भी उस वेले दा। उत्थे फिर दूरियां नहीं रह जांदियां भी असीं कहिए असीं तां 2020 विच बैठे हाँ ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ते 1708 विच ज्योति जोत समा गए। उन्हां नाल उन्हां दी शख्सियत की सी, उन्हां दे गुण की सन, उन्हां दा रुतबा की सी, असीं किवें जान सकदे। पर गुरु सवारियो जदों सुरत जुड़ती है ना, इस समय सारे मिट जाते ने, उत्थे ही चली जाती जिहदे नाल जुड़ती उस समय विच चली जाती। अल्लाह यार खां जोगी मुसलमान होने के बावजूद उन्हें ऐसिया ऐसिया गल्लां लिखियां। कहता वेखो, कहता मैं भी कवि हाँ ते मैं भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सिफत लिखण की कोशिश कर रहा तो मैं लिखी भी है, पर मैं भुलेखा नहीं खाता भी मैं अपने आप को आखां कि मेरे जितना वधिया जे मैं लिखिया कोई लिख नहीं सकता। वो कहता हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ क्या ताबे रकम है। भावां कि मेरे हाथ में भी कलम है, मैं गुरु साहब जी की सिफत लिखन लगा, वसफदार हुंदा सिफत लिखनी, उस्तत लिखनी, पर मेरी कलम विच भी ताबे रकम, मेरी कलम विच भी इतनी शक्ति नहीं कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पूरी सिफत लिख सके। उन्हें उदाहरण दी, कहते क्यों तुसी क्यों नहीं लिख सकते, इतना वड्डा तू ते कवि है, तू क्यों नहीं लिख सकता। तो वचन करते ने, कहते गुरु गोबिंद सिंह की है ते मैं की है, मैं तुहानू दसना। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ क्या ताबे रकम है। एक आंख से बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को या मझधार को या लहर को देखे। कहते मैं ते एक बुलबुला ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी एक बहर, बहर का अर्थ होता है समुंदर। हुण एक समुंदर दे विच उगिया बनिया पणपिया बुलबुला, वो ये आखे भी मैं समुंदर को माप लवां, मूर्खता है, नादानी है भी समुंदर विच एक बुलबुला पैदा हो जाए। वो समुंदर को थोड़ा जा जान सकता है जिन्नी को उहदी औकात है, जिन्नी को उहदी अपनी हैसियत है। वो सारे समुंदर का वो कहे भी मैं तो समुंदर का किनारा वेखना, मैं समुंदर दियां लहरां वेखणियां, मैं समुंदर के अंदर दा जो तूफान उठते ने वो वेखने ने। कहते बुलबुले की इन्नी कीमत नहीं, औकात नहीं कि वो सारे सागर को वेख सके। दुनिया जिहड़ी है वो बुलबुले की न्याई है, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी एक सागर, एक समुंदर की न्याई है। उन्हां बाबत कोई पूरी तरह से कीर्ति उन्हां दी कर नहीं सकता। एक आंख से बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को या मझधार को या लहर को देखे। कहते एक गुरु गोबिंद सिंह। अगला शेर उन्होंने देखो की है, कहते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी जो इस धरती ते कर गए, जो उन्होंने किया अपने लिए नहीं किया, अपने परिवार लिए नहीं किया, अपने आप लिए नहीं किया। हर बंदा ये सोचता है कि मैनू 2 वक्त की चंगी रोटी मिल जाए ना
मेरा घर घाट वधिया बन जाए, धियां पुत्र मेरे होण, मेरा चंगा रोजगार चल जाए, तो बंदा कभी भी सच हक की गल नहीं करेगा। वो कहेगा मेरा अपना ठैया ठप्पा चल रहा है, मैनू की लगे किसी का, मैं आराम नाल खा रहा, मैं क्यों इस तरह की किसी कशमकश में पवां। ते जे असीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का जीवन देखिए, धन गुरु तेग बहादुर महाराज ने आप जमीन खरीद के आनंदपुर लै दी, एडा सोहना नगर वसा दिता। सतगुरु जी के कोल इन्नियां संगतां ने, किसी तरह की कमी नहीं, धन दौलत पदार्थां की, साजां बाजां की, घोड़ियां ताजां की, बाजां की कोई कमी नहीं। पर गुरु साहब सच्चे पातशाह जी जे चाहते, जे उस तरह के अज के राजनीतिक सोच वाले होंदे भी मैनू की लोड़ है राजियां दे नाल लड़न दी, मैनू की लोड़ है बादशाह नाल लड़न दी, वो जुल्म करदा करी जाए, लोकां ते करदा ना, मैं ते आनंद नाल बैठा। वो जे धक्का करदा ते लोकां ते करदा, लताड़ियां माड़ियां ते नीवियां ते करदा, मेरे ते नहीं ना करदा, मैं ते आराम नाल बैठा। पर कह लगे नहीं, गुरु साहब सच्चे पातशाह जी जिस कार्य लिए आए सन कि सतगुरां नूं हुक्म सी, मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ परचुर करबे को साजा। गुरु साहब जी नूं हुक्म सी कि तुसीं ने जाके संत उभारन, दुष्ट संघारन, तुसीं ते संतां दा उभार करना है ते दुष्टां दा संघार करना है। इस करके सतगुरां ने अपना साज बाज, अपना शाही राज भाग ठाठ भी त्याग दिते, पर सतगुरु ने जालम बंदे का साथ नहीं दिता। किला साथ ही नहीं, ये भी नहीं कहा भी चलो मैं ना चंगिया नाल जुड़ना ना माड़िया नाल जुड़ना, चुप करके दिन कट ला। पर गुरु साहब सच्चे पातशाह जी चुप करके भी नहीं बैठे, क्योंकि जुल्म हो रहा है। इस करके अल्लाह यारखां जोगी कहता भी जे समाज, जे दुनिया न्याय करे ना, भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल जे न्याय करना है, जे गुरु साहब सच्चे पातशाह जी के बाबत, दतार पिता बाबत जे जानना है, तो वो बचन अल्लाह यारखां जोगी कर कहते ने भी जे ऐसी हालत होवे ते जमाने नूं मैं कहना कि जे वो न्याय करे ते सचमुच ये गल कहे कि सचमुच गोबिंद का सानी ही नहीं है। सचमुच जे कोई जमाना ये न्याय करे तो ओदे जुबान ते ओदे बोलां ते गल होएगी कि सचमुच गोबिंद का सानी ही नहीं है। ये उल्फत कह लगे उन्हां दा प्यार, उन्हां दी रहमत अपने मुरीदां दे नाल, ये उल्फत मरीदों से कह लगे उन्हां दा प्यार अपने मुरीदां नाल किन्ना सी, अपने प्यारियां नाल, सिखां नाल, उम्मत नाल किन्ना प्यार सी। ये मोहब्बत, ये उल्फत मरीदों से, ये शफकत कहीं है। शफकत अर्थ होंदा है मेहर करनी, रहमत करनी। भी ओहो जी रहमत कोई कर सकता है जिन्हां ने लताड़े, जिन्हां ने केवल तां केवल दबे कुचले गुलाम लोकां नूं सरदार बना दिता, शेर बना दिता, सिंह बना दिता। ये शफकत कहीं है? कहंदे इहो जी मेहर किसी ने अज तक कीती है? इहो जी रहमत किसी ने कीती है कि जिन्हों लोग डरांदे सन, जेड़े लोकां नूं गुरु साहब ने उन्हां नूं शेर बना दिता, सिंह बना दिता। कहंदे ये उल्फत मरीदों से, ये शफकत कहीं है? भक्ति में गुरु अर्श तो सतगुरु जमीन, भक्ति में गुरु अर्श तो संसार जमीन है। कह लगे रब परमात्मा स्वरूप धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, वो तो भगती विच अर्शी ने, आसमान वर्गे ने, दुनिया ते जमीन वर्गी है। और जमीन ते रहने वाला आसमान बाबत वाले बाबत की कह सकता है? उन्हां बाबत की कह सकता है? कहते उन्हां दे बाबत होर पूर्ण तौर पे कुछ नहीं कह सकता। पर जे न्याय करे जमाना जी में तो कह दे यकीन है गोबिंद का शानी ही नहीं है कि गोबिंद का गुरु साहब सच्चे पातशाह जी का कोई इस जगत संसार विच सानी दा अर्थ हुंदा है उन्हां दे बराबर दा, उन्हां दे मुकाबले दा, उन्हां नाल किसी दी उदाहरण भी नहीं दे सकते कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की क्या कमाल वारता सी। हुण गल्लां नाल ही तुसीं कहोगे ते आखी जांदे हो भी उन्हां वर्गा कोई उदाहरण ही नहीं, उन्हां वर्गा कमाल की कोई शख्सियत नहीं, उन्हां दी काबलियत की है, उन्हां दी की शख्सियत है। ते अल्लाह यार खां जोगी अगे लिखदा है कि देखो धन गुरु गोबिंद सिंह कैसे पैगंबर हैं, कैसे गुरु हैं, कैसे वली अवतार हैं कि जदों चमकौर की जंग होनी है ना, रात पई, असी सारे जानते हैं कि आनंदपुर साहब का
ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘੇਰਾ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤਿਆਗਦੇ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਤੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਛਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੋਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਤ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦਮਾਲੇ ਉਤਾਰੇ। ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਮਾਲੇ ਉਤਾਰੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੀਪੋਸ਼ ਉਤਾਰੇ, ਕਾਠੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੈਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਟਿਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਖੈਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਕੁਝ ਲੇਟ ਗਏ ਖਾਕ पे जी पोश बिछाकर, पहरा देने लगे कई तलवार उठाकर। कह लगे खाक ते मिट्टी ते धरती ते जी पोश, जिहड़ा घोड़ियां दी काठियां दे उत्ते कपड़ा पाया जाता है उहनूं जी पोश कहा जाता है। कहते उही विछा लिया सिंघां ने ते काठियां दे सराहने बना लए ते सौ गए। उत्ते जो मिलिया किसी नूं लै लिया, जे नहीं मिलिया तां भी रब दा शुक्र कीता ते सौ गए। कह लगे जदों सारियां नाल सतगुरां ने सलाह मशवरा किया भी सवेरे लड़ना, आ सिंह रात पहरे ते रहन, तुसी विश्राम करो क्योंकि सवेरे तुसी लड़ना है। ते सतगुरां नूं सिखां ने कहा दाता जी तुसी भी विश्राम करो, तुसी भी सारा दिन साडी नदरे रहमत करनी है, साडी अगवाई करनी है, इस करके तुसी भी अपने खैमे च चलो। ते अल्लाह यार खां लिखे लिखता है, कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछाकर, पहरा देने लगे कई तलवार उठाकर, गोबिंद भी शबबास हुए खैमे में जाकर। इस सिखा विखाण वास्ते कि मैं भी विश्राम करने वास्ते जाना, सतगुरु जी अपने खैमे विच चले गए। पर जो सिखा देखा, क्योंकि पहरा चलता सी, देखा तो वहां बैठे थे गर्दन को झुकाकर। सतगुरु जी गर्दन झुका के उत्थे बैठे। वाह गुरु था मुंह से निकलता, है तू ही तू, है तू ही तू, था मुंह से निकल। कहते सतगुरु जी चौंकड़ा मार के उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल जुड़े हुए ने। सिखां नूं थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है, बाकी सारे थके भुखे सिंह जिहड़े सन वो सौ गए। गुरु साहब सच्चे पातशाह जी मानू सिखां दे सौण की उड़ीक पे करते सन। किड्डा पैगंबर सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी। कह लगे जब 1.5 घड़ी रात बीती जिक्रे खुदा में, जदों 1.5 घड़ी रात बीत गई, सिंह सारे सौ गए, पहरे वाले 1-2 पहरा दे रहे ने। जब 1.5 घड़ी रात बीती जिक्रे खुदा में, खैमे से निकल आए सरकार हवा में। कह लगे सतगुरु जी खैमे चो बाहर आ गए। कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, कहते थे ए खुदावंद खुश हूँ मैं तेरी रजा में। वे खुदावंद दाता मैं ते तेरी रजा विच सदा खुश रहा। मता कोई सोचे भी अज आनंदपुर दे ऐसे आराम छड्ड के गुरु साहब चमकौर की गढ़ी विच है, इत्थे ना खान नूं चंगा, ना पान नूं चंगा, ना रहन नूं चंगा, ते कोई सोचे भी गुरु इत्थे शुक्र नहीं करेगा। दाता जी कहते हैं खुदावंद खुश हूँ मैं तेरी रजा में, मैं तेरी रजा विच खुश हाँ। करतार से कहते कि गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू हो। कहते करतार नूं रब नाल गल्लां करदे सन कि मैं इत्थों कल सुरखरू हो के चले जा। हुण कदमां नाल टहलदे जदों सिख वेखे सुते, ਵੱਡੇ ਸਾਫੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਸਨ, ਖੇਮੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਲਤਾੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਘੇਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਸੌਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਵਾਹ ਧਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, दस्तारे जो जमीन पर सोना तो होर वड्डी औख है। दस्तारे कईयां दे ढिले हो गए, कईयां दे केस खिलर गए,
कईयां दे जिहड़े कोठे घोड़ियां दी काठियां सिर दे थल्ले रखियां सन ओह सरक गईयां। दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह जी जदों अपने खैमे चों बाहर आए ते सतगुरां ने देखिया दतार पिता महाराज किसी का साफा खिल रहा है, अद्धा बज्जा अद्धा खिल रहा है, किसी के केस खिल रहे हैं, उन्होंने मिट्टी लगी है। तो गुरदेव पिता महाराज जी बड़े प्यार नाल दब्बे कदमी आउंदे ने। जिस सिख का साफा खुलिया उहदा साफा बन दे, जिस सिख के केस खुले ने उहदे केसां नूं बन्नदे ने। ते जिहड़ी मिट्टी उहदे केसां नूं लगी है उस मिट्टी नूं सा अपने हाथ नाल लैके अपने मस्तक ते लांदे। सिख अपने सिख दे केसां दी मिट्टी गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह अपने मस्तक नूं लांदा है। गुरु ला रहे अपने सिख दे केसां दी मिट्टी, सिख लावे तां दुनिया सारी इस तरह चल रही। सिख तां अपने गुरु नूं पूजदे ने, चेले तां अपने गुरु नूं पूजदे ने। दुनिया के धर्मां दे लोग इस गल की गवाही भरदे ने कि सारे धर्मां विच गुरु गुरु रहिंदा है, चेला चेला रहिंदा है। कदी किसी गुरु ने अपने चेले दे कदमां नूं जां अपने चेले नूं इस तरह की मानता नहीं दी। पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह जी उन्हां दे केसां नूं बन्नदे ने ते लगी हुई मिट्टी अपने मस्तक ते लांदे ने। अल्लाह यार खां जोगी कहंदा है कोई बंदा कोई अवतार कोई पैगंबर दुनिया च अज तक ऐसा मैनूं दिखाओ जिन्हें अपने मुरीदां नाल इन्ना प्यार कीता, जिन्हें अपने मुरीदां नूं अपनियां अखां ते रखिया होवे। ते उत्थे ओह वचन करदा है सतगुरु दतार पिता महाराज जी की उस्तद विच कि गुरु साहब की करते सन, साफे सिंगों के उठाते थे जमीन से। कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी साफे सिंगों के साफे उठाते थे जमीन से। केस उनके जो झाड़े तो ली खाक जबी से। कि जदों उन्हां दे केस झाड़ते सन सुत्तियां पिआंदे ते जिहड़ी खाक हत्थां नूं लगदी सी वो खाक झाड़दे नहीं सन, वो हत्थां नूं लगी हुई खाक अपने मस्तक ते ला लेंदे। साफे सिंगों के उठाते थे जमी से, केस जो उनके झाड़े तो ली खाक जबी से। कहते उसे जबी अपने मस्तक नूं को खाक लाई, अपने मत्थे नूं को खाक लाई। कहण लगे दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह जी इस तरह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने मस्तक नूं लांदे ने। बांधे हुए पटका पै कमर थे कमर से। कहण लगे कमर कसा बन के रात का टाइम है, कमर कसा बन के सतगुरु जी अपने सिखां दे विच विचरदे पए ने, अपने सिखां नूं देखदे पए ने। ते दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह ऐसा सतगुरु की रहमत ऐसी मेहरमत अल्लाह यार खां जोगी लिखता है कि ऐसी उल्फत के जज्बे नहीं देखे कहीं हम। उल्फत कहते प्रेम, कहते ऐसा प्रेम अपने सिखां नाल किसी गुरु का होवे ऐसा जज्बा नहीं देखा कभी। हाँ जो सिख सत्कार करता गुरु नूं मान दे दिंदा, गुरु प्यार दे दिंदा, पर इन्ना कौन करता भी जे गुरु के चरणों में सिख झुकदा पिया है तो गुरु अगों डंडौत करे ऐसा कोई देखिया? जे ऐसा कोई देखिया तो गुरु नानक के घर में ही देखी। उल्फत के ये जज्बे नहीं देखे कहीं हमने, है देखना तो एक बात सुने भी नहीं हमने। अल्लाह यार का कहना वेखना तो बड़ी दूर की गल, ऐसिया घटनावां असी ते कदी सुनिया भी नहीं जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने कर दिखाई। इन्ना प्यार सी सिंघां नाल। एक होर शेर उन्हां दा कहंदे दतार पिता जी का कितना प्यार सी ते प्यार सी विखावा नहीं सी। दुनिया के लोग भी काम करते हैं, बड़े बड़े लोग ने, चंगे कार्य करने वाले ने, भुखे का ढिड भरन वाले ने, गरीब का सहारा बनने वाले ने। दुनिया परोपकार विच बड़े लोग ने, माड़ी गल नहीं, परोपकारी भावना सब विच होनी चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे होंदे ने जिहड़े कर्म चंगा करते हैं पर पिछे भावना चंगी नहीं होती। मान लो किसी दे गरीब का ढिड भरना भला काम है, किसी लोड़वंद की लोड़ पूरी करनी परोपकार का काम, पर एदा विखावा करना पेट भरना एक दा परोपकार है, ते विखावा कराना हज़ारां नूं लखां नूं ये परोपकार नहीं। भावना पिछे अपनी वाह वादी है, उत्थे वो परोपकार भी बुराइयां तो बुरा बन जाता है। जिहड़ा चंगा काम भी असी मैली भावना दे नाल करदे, जदों असी माड़ा काम कीता वो तो माड़ा है ही, जदों चंगा काम भी इस भावना नाल कीता भी लोग मेरे वाल वेखण,
लोग आखण इहदे वर्गा दानी कोई नहीं, इहदे वर्गा परोपकारी कोई नहीं, असी रब रब करिए लोग वेखण साडे वल भी इहदे वर्गा भगत कोई नहीं। दाता जी कहंदे भी इह काम तूं चंगा भी कीता ते जे तेरी भावना पिछे माड़ी रही, हौमे वाली रही, लोग विखावे वाली रही, पखंड वाली रही, ते फिर तेरा ये चंगा कीता 100 बुराइयां तो भी बुरा है, तेरा चंगा भी बुरा बन गया जदों तुसीं भावना बुरी रखी। ते कई बारी मनुख कई बारी जीव अपना आम कीता होया कर्म बड़ा वड्डा पुण्य कर लेंदे ने, क्योंकि उत्थे उन्हां दी भावना निर्मल हुंदी है, शुद्ध हुंदी है। सो गुरु साहब सच्चे पातशाह बाबत अल्लाह याद कर देंदा, जे उन्हां दे पटके सामभदे ने, साफे सामभदे ने, उन्हां दे केस झाड़दे ने, उन्हां दे सिरां दे थल्लियों जिहड़ियां काठियां सरक गईयां, कहंदे उन्हां दे काठियां जदों सरक गईयां, सर ठीक किए सरके हुए बालिशें जी से, तरतीब दी हर चीज को ला ला के कहीं से, कहते हर चीज जितों ठीक लगती उत्थे लिया ला के गुरु साहब ने रखी। कहते उल्फत के ये जज्बे नहीं देखे कहीं हमने, है देखना एक बात नहीं सुने भी नहीं हमने। कहते असीं ते कभी सुनिया भी नहीं कोई पैगंबर कोई गुरु अपने सिखां दा अपने मुरीदां दा इन्ना करदा। पर अगों कहते किते कोई सोचे कि गुरु साहब सच्चे पातशाह जी विखावा करते हो, बिना ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ मैं विखावा भी मैं ਤੁਹਾਡਾ बड़ा करना। कहते सुत्तियां होयां दे सेवा पै करते ते किवें दतार पिता महाराज जी किवें करते ने, हर एक थे देखते हर एक को गुरु दीदाए तर से, हर एक दे कोल जांदे ने, जेड़े 40-42 सिख उत्थे चमकौर दी गढ़ी विच सुत्ते ने, हर एक दे कोल जांदे ने ते हर एक नूं वेखदे ने, थे देखते हर एक को गुरु दीदाए तर से। दीदाए तर दा अर्थ हुंदा है जदों एक नूं वेंदे सन, भाई मोहकम सिंह नूं वेंदे सन, बाबा अजीत सिंह जी नूं वेंदे सन, बाबा अपना जीवन सिंह जी नूं वेखदे सन, दतार पिता महाराज जदों भाई मदन सिंह जी भाई काठा सिंह जी नूं वेखदे सन ते पता सी भी कल इन्हां नहीं रहना। दाता जी कहंदे अल्लाह यार का कहंदे जदों हर एक सिख नूं गुरु साहब जी वेखदे ने ते किवें वेखदे ने, दीदाए तर से। दीदाए तर दा अर्थ हुंदा है भिजियां होईयां प्रेम दे अथरूआं वालियां अखां दे। जदों सिख नूं वेखदे ने कि कल इस नौ निहाल मेरे ने शहीद होना है ते गुरु साहब जी दे नेत्रा सेजल हो जांदे। कोई समझे ना कि गुरु साहब अपने पुत्रां दे मौत ते रोया नहीं ते गुरु बड़ा कठोर होएगा, बड़ा डाढ़ा होएगा। अल्लाह यार खां जोगी दा ये शेर पढ़े कि जदों अपने प्यारे सिखां नूं वेखदे ने ते देखते हर एक को गुरु दीदाए तर से, उन्हां दे नेत्र भी सेजल हुंदे सी। उन्हां दे हाँ वखरी गल है कि असीं जदों अपणिआं नूं रोंदे आ साडा मोह रवांदा है, साडे काम रवांदे ने, साडा मतलब रवांदा है। ते जदों कोई प्रेम वाला किसी लई रोंदा है उदों कल्ले वो प्रेम विच रोंदा, उहदा कोई काम नहीं भी ये मेरा काम कौन करेगा इहदे तो बाद। सासी काम नूं रोंदे आ, दुनिया किसी होर नूं नहीं रोंदी, पर प्रेम विच जे कोई रोंदा है सिख अपने गुरु नूं प्यार नाल रोंदा है ते गुरु अपने सिख लई भी नेत्रां चों हंझू वगांदा। सारे गुरु जदों बाबा बुढ़ा जी वो तो देखो अपनी पूरी उम्र भोग के गए बाबा बुढ़ा जी, पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी जदों उन्हां दी अर्थी नूं लांबू लगन लगा, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे नेत्रां च उस सिख दे लई भी अखां च पानी बह गया, अखां च अथरू बह गए। वो मोह दे नहीं सन, प्रेम दे अथरू सन, वो प्यार दे अथरू सन। सो अल्लाह यार खां लिखदे सिखां नूं देखदे ने, हर एक को देखते ते गुरु दीदाए तर से, उल्फत की निगाहों से मोहब्बत की नज़र से, बड़े प्रेम की नज़र नाल वेखदे सन, मोहब्बत की नज़र दे नाल वेखदे सन। बांधे हुए पटका पै बांधे हुए पटका पै खिदमत थे कमर से, कहते कमर नाल अपना कमर कस्सा बन्निया हर सिख कोल जांदे ने, उन्हां नूं तरतीब देंदे ने, केस झाड़दे ने, साफा बन्नदे ने। अगे देखो कि विखावा नहीं, हा जागता कोई तो सरक जाते थे सर से, भी जिवें किसी दे केस फड़े जां साफा झाड़िया जां उहदे सिर दे थल्ले वो काठी घोड़े की पान लगे ते जे कोई जागण लगदा जां पासा वट्टन लगदा सी ते गुरु साहब सच्चे पातशाह एकदम किनारे ते हो जाते सन, लुक जाते सन कि मता कोई सिख मैनू इस तरह अपनी सेवा करदिया ना वेख ले। ते दाता जी कहंदे ये लुको कातों रखते सन गुरु साहब
जोगी कहता लको का तो रखते सन, था जागता कोई तो सरक जाते थे सर से। कहते इको कारण करके नफरत सी गुरु साहब जी में, एक गल तो नफरत सी, नफरत थी यहाँ तक शाहे वाला को रियां से। शाहे वाला कहते पातशाह, पातशाह कौन? गुरु गोबिंद सिंह महाराज। रियां कहते ने पखंड नूं, विखावे। गुरु साहब सच्चे पातशाह जो सिखां की सेवा करते सन ते जे कोई जागन लगदा, जागो मिट्टी हुंदा ते गुरु साहब जी पिछां नूं सरक जांदे। कहते तां सरकते कि गुरु साहब जी ने इस गल तो नफरत सी, एक तां विखावे तो, पाखंड तो नफरत सी भी किते कोई जागया होया ये ना सोच ले कि गुरु गोबिंद सिंह विखावा प्या करदा है। कहते नफरत थी यहाँ तक शाहे वाला को रियां से, नेकी को छुपाते थे सदा मौशुमा से। मौशुमा कहते साडे तुहाडे, बंदा नेकी करे कि कोई छुपांदा है? बंदा देखो धर्म की ते दुनिया की रीत किवें पुठी है। असीं कहने हैं संसारियां ते धर्मियां का जोड़ नहीं बनता। जोड़ का मतलब ये नहीं भी एक दूजे को जोड़ना है, जोड़ का मतलब है भी उहदियां गल्लां विच ते संसारी बंदियां दी गल्लां विच जोड़ नहीं बनता। धर्मी बंदा पहली गल तो कोई बुरा कर्म नहीं करता, कभी नहीं करता। पर जे उहदे कोलों किते जाने अनजाने बुरा कर्म हो गया, माड़ा कर्म हो गया, किसी का दिल दुख गया या किसी तरह का कोई ऐसा कार्य हो गया, वो बड़ी छेती दे नाल अपने कीते हुए बुरे का पछतावा करेगा। बड़ी छेती वो कहेगा उत्थे जिस बंदे का दिल दुख गया या किसी को शब्दों नाल पीड़ आ गई, धर्मी बंदा बड़ी छेती परे पंचायत विच माफ़ी मंगेगा कि मेरे कोलों जे गुनाह होया मैनू बख्श दिओ, मेरे कोलों जे माड़ा कर्म हो गया मैनू बख्श दिओ। वो अपने बुरे कीते का पछतावा करेगा। ते जे उहदे कोलों नेकी हो जाए, धर्मी बंदे को नेकी तो सदा ही होंदी है, वो जदों जदों नेकी करदा उदों उदों अपनी नेकी नूं छुपांदा भी मेरी नेकी ना कोई वेखे, मेरा परोपकार ना कोई वेखे। ते माड़ा बंदा, संसारी बंदा जदों जदों बुरा कर्म करदा उदों उदों छुपांदा भी मेरी बुराई ना कोई वेखे। ना पछतावा करना, जे किते करना पै जाए झूठा सच्चा तो वह भी बाहरों बाहर उपरों उपरों, ना पछतावा करना, ना बुरे कर्म छुटने ने। ते जे किते नेकी वो मेरे मालका नेकी टके दी करदा है कि विखावा लखां का करदा है। कहंदे संसार है, संसार नेकी टके दी ते विखावा लखां का करदा है। ते रब दा मुरीद, रब दा प्यारा वो नेकियां करोड़ां दियां करदा, अरबां दियां करदा ते विखावा कौड़ी दा भी नहीं करदा। कहंदे गुरु साहब सच्चे पातशाह जी कोई विखावा नहीं, नफरत थी यहाँ तक शाहे वाला को रियां से, नेकी को छुपाते थे सदा माऊशुमा से कि तुहाडे साडे तो, तेरे मेरे तो, हर एक तो गुरु साहब अपनी नेकी छुपाते सन भी कोई ये ना आखे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज बड़े बड़े नेक ने, बड़े बड़े उदार ने। पर नेकियां जिन्हां सच्चे मन नाल कीतियां हुंदियां उन्हां दियां नेकियां भी छुपदियां नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने उत्थे नेकी कीती, अपने सिखां, अपने प्यारियां, अपने दुलारियां नूं प्रवान किया, सेजल अखां नाल उन्हां नूं तोरिया, थापड़ियां दे दे के तोरिया ते रात सिख सुते उन्हां दी सेवा की। दिन चढ़िया ते कल्ले कल्ले नूं जथे समेत जथेदार बना बना के सतगुरां ने चमकौर तो विदा किया। सिंह शहीद होए, असी सारा इतिहास जानते हैं। मैं ट्यूक मात्र समय के संदर्भ में रह के गल करनी है। सतगुरु जी किला छड्डदे, घड़ी छड्डदे, माछीवाड़े आउंदे। इत्थे गुरु साहब सच्चे पातशाह जी कुछ समा माछीवाड़े के जंगलों में रात बतीत करते, फिर गुलाबे पंजाबे मसंद के घर रहिंदे, फिर गणी खां ते नबी खां सतगुरु नूं मिलदे, उन्हां दी सेवा करते। कुछ दिन सतगुरु जी उत्थे ठहरदे। दातार पिता महाराज सच्चे पातशाह जी के पैरों में, पट्टां विच, दातार पिता महाराज जी के हत्थां विच जख्म हो गए सन। ते दातार जी जदों माछीवाड़े आए तो गुलाबे पंजाबे मसंद के घर रहे, उन्हां कुछ दिन रखिया, सेवा की, सतगुरां दे जख्म बचे। कई दिनों बाद सतगुरां ने गर्म पानी नाल इशनान किया गुलाबे ते पंजाबे मसंद के घर, वो सिख सन। फिर उन्होंने तो बाद गनी खां ते नबी खां के घर सतगुरु जी रहे। इतों सतगुरु जी उचदा पीर बन के असीं सारा इतिहास कलगीधर मार्ग पढ़ने, जिथे जिथे सतगुरु जी गए
आलमगीर सतगुरु दतार पिता महाराज जी गए, रायकोट गए, राय कल्ले नूं मिले। इत्थे दतार जी नूं छोटे साहिबजादियां दी शहादत का पता लगता है। इस तो बाद सतगुरु दतार पिता महाराज जी दीना कांगड़ पहुँचते। सतगुरु जी की शख्सियत मैं कह रहा, दीना कांगड़ पहुँचते हैं, कुछ नहीं पास, 3 सिंह ने ते आप सतगुरु जी ने, बाकी सारी संगत है जी घर परिवार गृहस्थ वाली। सतगुरु जी इत्थे भाई दया सिंह नूं कहंदे, दया सिंह औरंगजेब ने एक चिट्ठी लिखी है। सतगुरु जी जी हजूर हुक्म, कलम लियाओ, दुआत लियाओ, कागज़ लियाओ। एक चिट्ठी लिखी तो जो गुरु साहब जी ने औरंगजेब को चिट्ठी लिखी ना, जिन्हों असी जफरनामा कहने, उसका तर्जुमा आप पिछले दिनों में सुनते हैं, कई ने बड़े वजद में गाया भी है। पर जफरनामा, जफर का अर्थ होंदा है जित, नामा का अर्थ होंदा है कोई खत पाना, कोई लिखना, लिखत जित की चिट्ठी लिखी सतगुरु ने। जदों भी कोई मनुख, कोई बंदा, कोई प्राणी समय दे राजे नूं, बादशाह नूं चिट्ठी लिखदा है ते उदों ओदी पहला सिफत करदा है, ओदे कसीदे कसदा है, उन्होंने वड्डा कहता, उन्होंने सलाम जवाब, सलाम दुआ करता है, तू बड़ा वड्डा है, तू महान है, तू। पर हर असी भी अज आप लिखते हैं चिट्ठियां, किसी अदारे को लिखनी पाए तो लिखना पैंदा भी सेवा विखे, भी तुहाडी सेवा विच आ। अपने आप को पहला दसना पैंदा है भी मैं तेरी सेवा च ही हाँ, तेरा ही हाँ, फिर अगे अपनी गल करनी पैंदी है। फिर उहदे बाबत उहदा धन्नवाद भी करना पैंदा है, उहदे बाबत माणयोग सत्कारयोग भी लिखना पैंदा है। भावें कि मन मनदा होवे भी बंदा सत्कार दे लायक है नहीं, पर चिट्ठी च लिखना पैंदा। असीं लिखदे हैं, पर जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने चिट्ठी लिखी ना, वेखो एक छोटे जे अदारे नूं आपां लिखना होवे, एक निक्के जे अदारे नूं, घर पिंड विच बैठे हाँ, किसी निक्के जे महकमे नूं लिखना होवे, उहदे बाबत पत्तर ते सेवा विच माणयोग सत्कारयोग पता नहीं की तखल्लस लाने पैंदे ने। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी समय दे बादशाह नूं पत्तर पे लिखदे, समय दे बादशाह नूं पत्तर पे लिखदे ने। जिस बादशाह नाल टक्कर हुई, जिस बादशाह ने घर घाट खत्म कर दिता, पर उन्होंने शब्द लिख दिया कि तेरे लिखिया भी बादशाह औरंगजेब तेरी सेवा में कहन लगा, तू बड़ा महान है, तू दुनिया को पालन रहा है, तू इस धरती को पाल रहा है। सब तो पहला सतगुरु ने 12 शेर वो लिखे जेडे निरोल अकाल पुरख वाहिगुरु की सिफत करते। किते औरंग पहला जिन्होंने चिट्ठी लिखनी उसकी सिफत लिखी जाती है, पर गुरु साहब जी ने सब तो पहला अकाल पुरख की सिफत लिखी। लिख बादशाह रहे ने, पर यह कह दिता तू सिफत के लायक नहीं, चिट्ठी मैं तेनू लिख रहा पर तेरी सिफत नहीं लिखनी, सिफत मैं अकाल की लिखनी है। केड़ा अकाल? जेड़ा कमाले करामात कायम करीम रजा बख्श राजुक रिहा कुन रहीम, जेड़ा बड़ा कमाल दा, जिन्हियां करामातां दे विच उन्हूं कमाल हासिल है, जेड़ा सारियां नूं रोजी देंदा, तू रोजक नहीं, तू करीम कबीर नहीं, वो अकाल पुरख वाहिगुरू है। ते जदों आउंदी औरंगजेब की वारी, 1 दर्जन शेर 12 शेर सतगुरु जी परमात्मा की सिफत विच लिखते हैं। ते उस तो बाद दास्तां शुरू होंदी है। दास्तां का अर्थ जो जो वापरिया, जो जो होया, वो गुरु साहब जी औरंगजेब नूं दसदे ने। पर फिर भी वेखो किते उहदे बाबत ये नहीं लिखिया भी तू बड़ा महान है, तू राजा, तू बादशाह, हुण ही सोच लै, मेरे ते तरस कर लै। सतगुरु जी जदों भी उहदे बाबत लिखते हैं, की लिखते हैं? ना इमाम प्रस्ती, ना उजाए दीन, ना साहिब सनासी, ना मोहम्मद यकीन, भी तू भी बंदा है। औरंगजेब नूं समय दे बादशाह नूं बंदे नूं कहना पवे, आम बंदे नूं कहन लग्या भी बंदा सोचता है यार गुस्सा करेगा, मेरे नाल लड़ेगा झगड़ेगा। पर सच कहना जे किसी ने सीखना गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो सीख। कहते ना इमाम प्रस्ती ना उजाए दी, तू अपने आप को कहना भी मैं बड़ा वड्डा बादशाह, मैं बड़ा इस्लाम का रक्षक हाँ, इस्लाम का प्रचार करने वाला, धर्म के राह पर तुरन वाला, यही विखावा करता सी ना औरंगजेब। पर गुरु साहब जी दसदे तू है कि ना इमाम प्रस्ती, तेरे कोल ईमान अर्थ है, ईमान की तो कोई गल है ही नहीं, तेरे कोल धर्म की तो कोई गल है नहीं। जे तू धर्मी हुंदा ते भुखे सिखां नूं इस तरह तेरी 10 लाख की फौज जिहड़ी मखियाल दीआं मक्खियां वांगू आई आउंदी। जे तू ईमान वाला हुंदा ते तेरा काजी
तेरे राजियां दे पुरोहित मेरे कोल किले दे विच आके आनंदपुर कसमां खा के मुकर जांदे। तू जे ईमान वाला हुंदा, धर्म वाला बंदा कदी मुकरदा है? तू तो बेईमान है, भी तेरा कोई ईमान नहीं। इस करके सतगुरु जी ने कहा भी ये मुखौटा उतार दे कि तू ईमान वाला। कहते ना ईमान प्रस्ती, तेरे को ईमान है ही नहीं, तू बेईमान है। ना उजाए दीन ते ना तेरे को दीन का राह है, भी तू कहे भी मैं धर्म के राह पर तुरना, मैं कभी माड़ा नहीं करता, कभी धक्का नहीं करता, कभी बुरा नहीं करता। औरंगजेब तू जे धर्म के रस्ते ते तुरिया हुंदा, तू अपना बाप ना मारदा राजगद्दी में, तू अपनी भैन ना मारदा, तू अपना भरा ना मारदा, तू वो संत फकीर महात्मा ना मारदा जो रब दे रंग विच रंगे हुए सन। तू धर्म के राह ते किथे तुरिया, तू ते शैतान दे राह ते। इस करके ना तू ईमान वाला है ते ना तू ईमान दे राह ते तुरन वाला है। ना ईमान प्रस्ती, ना उजाए दीन, ना साहिब शनाशी, ना मुहम्मद यकीन। फिर तू दूजा कहना भी मैं अल्लाह देखिया, मैं अल्लाह नूं देखण दा तलबदार हाँ। ते चौथा तू कहना मैनू मुहम्मद साहब ते यकीन है। ये चीज़ां इस्लाम धर्म के धारनी नूं दिखाईयां जांदियां भी जे तू इस्लाम का सच्चा धारक बनना है तो तेनू सब तो पहला इस्लाम ते ईमान होना चाहिए। ईमान का अर्थ असल च हुंदा है यकीन, भी मैनू रब दी अपने इस्लाम की हर गल ते यकीन है, मैनू धर्म की हर गल ते यकीन है। कल्ले मुसलमान वास्ते नहीं बनिया उन्हां वास्ते, वैसे हर धर्म के बंदे दे उत्ते फिकरा लागू हुंदा है, गुण लागू हुंदा है कि उन्होंने अपने धर्म के उत्ते यकीन होना चाहिए। ईमान प्रस्ती होनी चाहिए उहदे कोल भी मेरा धर्म जे मेरे गुरु ने यह गल कही है तो यह 100% सच है। मेरी बुद्धि मन्ने ना मन्ने, पर अज असी बड़े बड़े लोग धर्मी बाणा पा के अज असी ईमान प्रस्ती होने का दावा तो करते हैं, पर गल्लां विच साडे ईमान दिसदा कोई नहीं। धर्म तो ठीणियां गल्लां करते, अधर्मी गल्लां करते हैं भी आ किवें हो सकता है, आओ किवें हो सकता है। तो गुरु साहब रामदेव को कह रहे हैं तू बनदा धर्मी है, ना तू धर्म ते तैनूं यकीन है ते ना तेरा धर्म का राह है। तीसरी गल कि जेड़ा बंदा धर्म के राह पर तुरदा है वह अल्लाह नूं वेखण दा, रब नूं वेखण दा चाहवान हुंदा है ते वह वेख भी लैंदा है। पर कहंदे तीजी गल तेरे कोल रब भी नहीं, रब के दर्शन भी, अल्लाह के दर्शन भी नहीं तू कर सकदा, विखावा ही करना है। ते चौथी गल तेनूं अपने इष्ट ते, अपने ईमान बनाने वाले ते मुहम्मद साहब ते भी यकीन है, भावें तू लख कही जाए कि मैनू मुहम्मद साहब बड़ा प्यारा है, जदों उहदी गल ही नहीं मननी, उहदा दीन ही नहीं मनना, उहदा धर्म ही नहीं मनना, प्यारा कर तो लख कही जाए मेरा गुरु गोबिंद सिंह नाल बड़ा प्रेम है, मेरा गुरु गोबिंद सिंह नाल बड़ा लगाव है, जदों गुरु की वार्ता ही नहीं मननी, गुरु का वचन ही नहीं मनना, फिर प्यार काहदा हो? विखावा है ना, गल है ना। गुरु साहब मुहम्मद कह रहे हैं औरंगजेब नूं ना ईमान प्रस्ती, ना उजाए दीन, ना साहिब सनासी, ना मुहम्मद यकीन। तेनू अपने मुहम्मद ते यकीन नहीं, तू काहदा ईमान वाला है, काहदा मुसलमान है। फिर अगे गल करते हैं भी तेनू किदे ते एतबार, तेनू किदे ते भरोसा है। ते दाता जी कहते तुरा अगर नजर अस्त लश्कर व जर, कि तेरी नज़र है अपनी लश्करी फौज से, भी मेरे को बड़ी वड्डी फौज है। जर का अर्थ है माल असबाब खजाना गंज, भी तेरे को फौज बड़ी वड्डी सी, तेरे को खजाना बड़ा है सारे हिंदुस्तान का, तू राजा है, रियासत तेरे अधीन ने, ते तेनू ते एदा मान है भी मैं ये सिर पर चलना वा, मैं की लैना ईमान तो, विखावा करी जाओ ईमान ते। पर गुरु साहब कहते जे तेरे को ये चीज़ां ने ना, तेरे को लश्कर है, तेरे को धन है, तेरे को पदार्थों की कमी नहीं, तो मेरे को भी एक चीज़ है जिहड़ी चीज़ तेरे सारे इस माल असबाब लश्कर नूं नेस्तो नबूद कर देगी, खत्म कर देगी। गुरु साहब कहते मेरे को की है, मेरे को रब दे अगे करन दे लई शुकराना, मैं हर हालात विच उहदे अगे शुक्र करना, इस करके तेरा लश्कर, तेरे एक गंज, तेरे एक पदार्थ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुरा अगर नजर अस्त लश्कर व जर, कि मारा निगाह अस्त यजदा शुक्र, मैं सदा रब दे शुक्र विच रहना। तुरा अगर गरूर अस्त, कि तेरा गरूर है ना, बर मालो व माल, कि मेरे को माल असबाब बड़ा है। ते गुरु साहब जी कहते ने मारा पना अस्त यजदा अकाल, मेरे को एक अकाल दी पना है, मेरे को एक रब का भरोसा है, मेरे को एक रब का डर है। इस करके औरंगजेब
मैं तेनू लिख रहा पत्तर कि तू बादशाह अखवाउण दा भी हकदार, तू तख्त ते बहण दा भी हकदार नहीं, ना जेबत तुरा ना औरंगजेब के औरंगजेबा ने याद करे कि औरंगजेब होकर के औरंगजेबदार तो तख्त की शोभा वधाना भी तू ते तख्त ते लगा होया कलंक है, तू तख्त ते शोभा दे लायक नहीं। गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने ऐसी कमाल की दास्तान जफरनामे दे विच लिखी जिस विच सतगुरां ने औरंगजेब नूं हिला दिता। चे शुद्ध के चू बचका कुश्ते चार कि बाकी बेमदा दस्त पेचीदा मार कि होया तू मेरे 4 बच्चे मार दिते, शहीद कर दिते कि बाकी बेमादस्त पेचीदा मार ते जेड़ा बाकी सप पिया कुंडलिया जेड़ा पेचीदा मार कुंडल मार के बैठा है वो तेरियां जड़ा हिला दे। देखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ये चीज़ जिहड़ी कही है 1704 ते 5 दे विच दीने कांगड़ की धरती ते ये जफरनामा सतगुरां ने 1704-5 विच लिखिया। उस समय गल कही कि अज तू मेरे सिंह मार दिते, शहीद कर दिते, मेरे बच्चे को के शहीद कर दिते, पर तेनू मैं दसना चाहना कि मेरा एक खालसा कुंडलिया सप अजे वो बैठा जवान हो रहा है, वो पेचीदा मार कुंडल मार के बैठ गया ते वो तेरियां जड़ा हिला देगा। इस करके तू अपने आप को होश विच लिया, ईमान विच लिया, अजे भी तेरे को मौका है। पर औरंगजेब कुछ कर गुजरदा पछोतावा कर सकदा ते शायद ओदा अग्गा सुध जांदा, पर औरंगजेब नूं पछोतावा करन दा मौका भी नहीं मिलिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे इन्हां बाणा ने, बाणी दे बाणा ने, एक तां तीर उन्हां वैसे चलाए ना, एक बाणी दे बाण चलाए ते ओ बाणी दे बाणा नाल ही मर गया। ओ बाणी दे बाणा नाल ही मर के ओ वहशत दी अग विच सड़न दे लई चला गया। कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दी शख्सियत सी जिस लई सिखां ने आपा वाले, जिस गुरु दे प्यार लई सिखां ने अपने कौल निभाए, जिस गुरु दे नाल नेह करदियां सिख हर मुसीबत, हर दुख, हर संकट हस के झल गए, पर उन्हें कीता गुरु नाल अपना कौल नहीं तोड़िया ते ना गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने सिखां नाल कीता कौल तोड़िया। इस करके असीं उस सच्चे पातशाह जी दे पुत्र हाँ जिहड़ा अपने सिख नाल जे कौल कर ले ना। गुरु तेग बहादुर जी दे बचन पढ़दे हैं ना, जदों पंडित सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी दे कोल आया सी कि बांह असादी पकड़ी है, बांह असाडी पकड़ी है, हर गोबिंद के नंद कि हे गुरु हरगोबिंद साहब जी के पुत्र गुरु तेग बहादुर जी साडी बांह पकड़ो, औरंगजेब साडे जंजू के तिलक ला रहे। ते गुरु साहब जी ने के बचन कहे सन, गुरु तेग बहादुर बोलिया घर पईए धर्म ना छोड़िए, बांह जिन्हां दी पकड़ी है सिर दीजै, बांह ना छोड़िए। वो गुरु का घर है जिहदी बांह पकड़ लई गुरु भी अपना सिर कटा दिंदा है। जे सिखां ने सीस कटाए ते गुरु ने भी अपने सीस कटाए। कोई दुवल्ली खेड चले, एक पासड़ नहीं रखिया। दुनिया के अंदर इतिहास गवाह है चेले ही मरते रहे, दुनिया के अंदर इतिहास गवाह सेवक ही मरते रहे, पर एक सिख इतिहास है इत्थे गुरु साहब पहला मरण कबूल कर आप पहला मरना कबूल किया। गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह गुरु होके पहला आप शहादत दी, उस बाद शहीदी की परंपरा चली जो अज तक चल रही। ये शहीदी की परंपरा सिखां नूं विरासत विच मिली है। सिखां दे पास जो कुछ है, देखो इतिहास इनू कला है ना समझो भी इतिहास सुन लिया सुना लिया तो घरां नूं चले। इतिहास की कीमत उदों पैंदी है जदों आपां किसी उस दौर विचों गुजरते होइए जिस दौर का आपां इतिहास कह रहे। असी इतिहास कहने पोह दियां रातां दा, असी इतिहास कहने ठंडे बुरज का, असी इतिहास कहने भी सिखां ने मुश्किलां जरियां हस के जरियां ते जदों बंदे ते आप ते वो समा बनता है ना उदों उस समय जे उहदे कोल आ इतिहास होवे ते ए इतिहास उहदा सहारा बनता है, उहदी डंगोरी बनता है, जिहदी बदौलत अज साडे वीर साडे भरा साडे बजुर्ग जिहड़े अपने हक्कां लई जूझते हुए शांतमई धरनियां विच दिल्ली दी सरकार दे गोले करना विच आवाज़ करने वास्ते बैठे ने। उन्हां कोल की है सहारा, की उन्हां कोल पोह दियां रातां दा इतिहास है।
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ। ਨਿੱਘ ਕਦੀ ਲੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਨਿੱਘ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਗੌਰਵ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਦ ਨਿਦਾਨ ਬਣੇ, तब ही रण में अत जूझ मरूं, उसे वक्त असी रण विच जूझण दी शक्ति रखिए। क्योंकि गुरु ने सानू सिखाया कि देह सिवा पर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू ना डरूं, ना डरूं अरसों जब जाए लरूं, निश्चय करे अपनी जीत करूं। जीत जेड़ी है, जित जेड़ी है वो निश्चयां नाल हुंदी है। जित किरपानां नाल नहीं मिलदी, जित बंदूकां नाल नहीं मिलदी, जित जेड़ी है तोफां नाल नहीं मिलदी, जित हौसलियां नाल मिलदी। जे बंदूकां तोफां तीरां नाल मिलदी ते 10 लाख दे जेड़ा बरखैया आया सी वो जित जांदा, पर अगे 40 हौसले वाले सन, सिदक वाले सन, वो मर गए पर हारे नहीं। मर जाना हार जाना नहीं, मर जाना जित जाना हुंदा है। मर जाना जे अपने धर्म लई, अपने एम लई, अपने कौम लई मर जाना वो जित जाना हुंदा है। हाँ, जे बंदा अपने स्वार्थां लई विकारां च मर जाए, रोगां च मर जाए, वो मर जाना है। पर ये मौत मौत नहीं, ये मौत का परम आनंद है। जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइयै, पूर्ण परमानंद। गुरु कृपा करे आप सरबत संगत उन्हां महान शहीदां दी याद विच जुड़ बैठे हो। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी साडे सारियां ते कला वरताउण, रहमत करन। उन्हां दी याद विच, उन्हां दे दिनां विच साडे अंदर भी वो लोग, साडे अंदर भी वो जज्बा, साडे अंदर भी वो जुल्म नाल लड़न की ताकत ते समर्था गुरु बख्श दे। इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां, विचारा करदियां बेअंत भुल्लां हो गईयां हन। आप संगत कृपालु सतगुरु जी बख्शी योग ने बख्श देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का, जिन्हां दी दया मेहरान सदका आप संगत दे कुछ बुलां दे नाल मैं सेवा कर सकिया, जोड़े झाड़ सकिया। समूह संगत का धन्यवाद, समूह प्रबंधकों का धन्यवाद, महापुरखों का धन्यवाद। इतनियां बेनतियां प्रवान करते फतेह की सांझ करो जी। प्यार से ताको। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।